pyrimidine derivatives, all the three pyrimidine derivatives found in nucleic acid and guanine, that is one of the purine derivatives, show tautomerism. When you talk tautomerism, obviously you are talking a special type of functional isomerism in which the solution contains compound containing two different functional groups, which is obtained by transfer of hydrogen from near carbon atom. So now you can see uracil, cytosine and thymine exhibit tautomerism, and also guanine also show tautomerism. How they show? Look, in all the four compounds you can see you have keto group is adjacent to NH group. Okay, keto group is adjacent to NH group. Okay, so what you have, if you have a CO group attached to NH group, you call this lactam form. You know that obviously, you know that this is amide. CONH2 is amide group. You know it, this is amide group. But when CONH is in a cyclic amide form, you call it as a lactam form. Okay, and similarly on tautomerism, what is happening? You can see this H is going, this H from nitrogen is being transferred to the oxygen of the carbon. So you are getting this structure. Obviously this is this lactimide form, and obviously this is cyclic imide. You call it imide. So cyclic imide, you see. You call this as a imide form. So what you have, it has been found that at physiological pH, that is, we are talking the pH of the body, lactam tautomeric form is predominantly present. Lactam tautomeric form is predominantly present. So in living cells, all the three, that is uracil, cytosine, thymine and guanine, are present in lactam form. But the possibility is there. Now I have given the lactam form and lactine form of the four bases, that is uracil. Uracil, you can see this is the lactam form, this is the lactine. You have thymine, that is methyl uracil. Then you can see this is converted into which. Similarly cytosine, this here you have NH and CO group, which is being converted into C double bond and OH. And again in guanine, here you have the lactam form, which is being converted into lactine form. So this is all about tautomerism. So sometimes you may see a structure like this, so it does not get confused. So that is the lactam, that is the lactive form, and at physiological pH, all the four bases are present in a lactam form, that is this form. So this is all about bases present in it. Now in order to summarize, थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं. हम लोगों ने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस से सबसे पहले पाया गया, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. और इसकी डिस्कवरी फ्राइडरिच ने किया था पस सेल से, न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल से उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन रखा. देन ऑन द बेसिस ऑफ इसका एसिडिक बिहेवियर देके अल्टमैन ने इसका नाम कर दिया न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो पहला अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे अमोनिया से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे अंडर प्रेशर में, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. ओके, एंड न्यूक्लियोटाइड ही मिलेगा अगर उस न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एंजाइम न्यूक्लियन से. सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे इनऑर्गेनिक से, तो आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड मिलेगा. न्यूक्लियोटाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे अमोनिया से, एक्वस अमोनिया से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमको न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा. और न्यूक्लियोसाइड का अगर हम फर्दर कर देंगे हाइड्रोलिसिस इनऑर्गेनिक एसिड से, तो हमको प्यूरिन, पिरिमिडीन एंड शुगर मिलेगा. शुगर
दो तरह का होता है, डी राइबोज और 2-डीऑक्सी-राइबोज। ऑब्वियसली अगर राइबोज है तो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और 2-डीऑक्सी-राइबोज है तो डीएनए है, डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लिक एसिड है। दोनों का स्ट्रक्चर हम लोगों ने दिखाया, फिशर स्ट्रक्चर दिखाया, हार्वर्ड प्रोजेक्शन दिखाया, ये भी बताया कि बीटा आइसोमर न्यूक्लिक एसिड में रहता है, बीटा आइसोमर में OH ऊपर रहता है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन। फिर हम लोगों ने बात की पिरिमिडीन की, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर दिया हम लोगों ने, उसमें बताया कि इसको मेटाडायजीन भी कहते हैं, 1,3-डायजीन भी कहते हैं। इसका 3 डेरिवेटिव है, यूरासिल है, जिसको U से भी डोनेट करते हैं, साइटोसिन, थाइमिन है जिसको T से करते हैं, और आपका साइटोसिन है जिसको C से करते हैं। फिर प्यूरिन में आ गया हम लोग, प्यूरिन में बोला कि साइक्लिक यूराइड है, साइक्लिक यूराइड है जिसमें दो यूरिया अटैच होता है, कंबाइंड रहता है, इसको यूराइड्स बोलते हैं। ये इसमें 2 मेजर होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया, और मेमोराइज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, AG कट हो गया है, डेट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात की कि इसके अलावा भी कुछ साइटोसिन के जो डेरिवेटिव हैं, जैसे 5-मिथाइल साइटोसिन है, N-एसिटाइल साइटोसिन है, वो प्रेजेंट किस में है, न्यूक्लिक एसिड में, वो थोड़े माइनर अमाउंट में। और प्यूरिन्स के जो डेरिवेटिव हैं जो फ्री स्टेट में है, वो जैंथिन है, हाइपोजेंथिन है, और क्या है, यूरिक एसिड है, जो सेल में पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि जो ये डेरिवेटिव्स है पैरामिडीन के तीनों और ग्वानिन के, ये लैक्टम फॉर्म में होते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच पे, ऐसे ये लैक्टिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड इंट्रोडक्शन एंड वी हैव, और इसके बारे में हम लोग ने क्या बात की, पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स जो 3 बेसिस हैं, प्यूरिन के जो 3 बेसिस हैं, और उसके बाद लैक्टिन और लैक्टम और लैक्टिन फॉर्म क्या होता है उनका, ये बात की, और जो एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन हो। ओके,